uh, to rejoice in the Lord. और आज भी हमने सुना कि प्रभु में सदा आनंदित रहना है। The world, the train of the world that we see, even in the lives of believers, many is to chase after the world. और इसी प्रकार से बहुत सारे जो विश्वासियों में ऐसे देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है पुराने खमीर की तरह ऐसा जीवन हो रहा है। And as many of us have also quoted, I mean, there is no contentment, there is seeking of wealth and riches, one after the other. और ऐसे ही जो है एक जो है धन संपत्ति और ऐसे ही उसके पीछे पीछे एक दूसरे के पीछे भागते रहते So हैं। there is no time, no point of contentment, and there is no point of rejoicing in the Lord with whatever situation it is. तो इसलिए कोई भी कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसमें प्रभु में आनंदित रहें। As brother also has shared, quoted even Romans 8, where it says, everything works out good for good. हाँ, भाई ने भी जैसे बताया रोमियो 8 में कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमारे लिए भलाई के लिए करता है। But in our life, many times we see whenever some unexpected thing happens, that we seek for something and it doesn't happen, there is a broken down within. और जब कभी भी हम जो सोचते हैं, हम जो चाह रखते हैं, अगर वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है तो हम वो टूट जाते हैं और हम फिर नीचे हो जाते हैं और गिर जाते हैं। But surely, if I love the Lord and I live with the Lord, everything happens for good. लेकिन सच में हमें पूरी तरह परमेश्वर के लिए जीना है, वो हम सच है, वो हमारे लिए भलाई करेगा। And that good may not be to make me to restore whatever I lost, but to conform me to the nature and image of Christ. हाँ, अगर कोई भी चीज आपका नुकसान हो गया है, चला गया है, लेकिन नहीं, अगर आप उस परिस्थिति में हैं और आप मसीह की तरह वैसे ही बनते हुए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। So that is what I also see in my life, that I must seek myself to conform to the image of Christ in my daily life. और इसलिए मैं भी जो है हर दिन मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए मैं हर दिन ढूंढता रहता हूँ। Everything I do must align with His purpose and to come into that character of Christ. और जो कुछ भी मैं करता हूँ इस बात को ध्यान रखता हूँ कि मैं मसीह के स्वरूप में बदल रहा हूँ। And if I live in that spirit, and surely there will be a contentment in everything that I do. और अगर हम सच में आत्मा में चल रहे हैं तो सब जगह हमें जो है संतुष्टि रहेगा और हम खुश रहेंगे। Even as we read in Timothy also, godliness with contentment is great gain. और जैसे कि हमने तिमुथी में भी पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ा था उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के बारे में है जो चाह है वो उसमें जो है संतुष्टि है। Surely to live with contentment in God और is a परमेश्वर में great सच में gain, पूरी तरह संतुष्टि है। and not doing so, we are forfeiting और all those great gain in और ये Christ. सब चीजें हमारे जीवन में होगा। And as brother also read out from Philippians, I can do all things through Christ और जैसा कि वचन कहता है कि मैं मसीह की सामर्थ्य से सब कुछ कर that सकता हूँ। strengthen me. और ये हम इसलिए जीते हैं। And that initially I also didn't know what that, and people uh, used to say, I can do all things through Christ. I can do means they think that I can do anything with Christ. और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह But के। I came to understand that with Christ I can live even if in one, and even when I'm in plenty. और लेकिन मसीह के साथ जो है मुझे मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसमें भी मैं प्रभु के साथ रह सकता हूँ। So otherwise, when we are in plenty, there is a tendency to forget God. क्योंकि जब कभी भी हम ज्यादा आशीषित होते हैं, ज्यादा चीजें रहते हैं बहुत ही, तो हम परमेश्वर को भूलने का वहां पे संभावना है। Even when we are in want, there is a tendency to miss God. और ऐसे ही जब बढ़ जाता है तो हम वहां पे प्रभु किसे भूल जाते हैं। But if I live in Christ in the Spirit and abiding in Him, truly I can do all things through Christ, and I can live both in one and in plenty. और लेकिन मसीह में जो है हम सब कुछ हमारे लिए भलाई होगा और हम उसमें भी ज्यादा भी होगा, फिर भी हम मसीह के लिए Uh, सही रहेंगे। really, God help me in these days to live in the Spirit. और सच में परमेश्वर ने मुझे इन दिनों बहुत ही आत्मा में चलने में सहायता किया है। And as we sang one song yesterday in brothers' meeting, send the fire. और कल भाई की सभा में एक गाना गाए थे कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भेज भर दे और भेज भेज दे। God also may help us to send His fire even in our midst, to और experience His greatness even in these days. और परमेश्वर सच में प्रभु जो है ऐसा जो आग है पवित्र आत्मा की हमारे बीच में भेजे, जिससे हम भी परमेश्वर के अनुभव को उस पर और भी अनुभव कर I सकें। thank and praise God for this प्रभु time. की स्तुति हो, आमीन।
मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज की इस सभा के लिए, और हम सब यहाँ